یہ مال انسان کماتا ہے نا، محنت سے انسان مال کماتا ہے، تو چلو دولت سے پیار نہیں کرنا چاہیے، پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے، اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے کسی چیز سے بندہ پیار کرتا ہے۔ تو جو ہے نا میری بات، پیسہ بھی بندہ سے آپ کہنا جبرن خرچ کرے، تو پیسے بھی وہ جبرن خرچ کر سکتا، یعنی پیار آیا نا بچے پہ تو بالکل کوئی ضرورت نہیں، کپڑے بھی پورے ہیں اور اس کی ساری ضروریات پوری ہیں، تو پیار آیا تو بندہ کھلونا خرید کے لے جاتا ہے۔ پیار والی جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیار نہ ہو تو پیسہ بھی خرچ۔ حضرت صدیق ایک بڑے مالدار تھے، تاجر آدمی تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال آزاد ہو جائے نا تو بیچارہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں 100 اوقیہ سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ غلام کی قیمت تھی 1-2 اوقیہ، کتنا لے کے کتنے گئے؟ چلے میں کچھ نہیں کہتا ہے تو لگا بولنے ساتھ کتنا جی لو جی میرے کو میں نے بتا دیا 100، یعنی سمجھ کے چیز 1 روپے کی لے گئے 1 لاکھ روپیہ جیب میں ڈالا۔ حضور نے چاہا ہے نا بلال آزاد، تو محبوب کی چاہت کے کوئی ریٹ ہے کوئی نہیں، لے گئے جا کے بھیا بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے ہیں، تو وہ کہنے لگا 30 اوقیہ سونا ہوگا بلال کو آزاد کرنے کا۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہاتوں میں نا کبھی کوئی بیل کوئی بھینس کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو اس نے نہیں نا بیچنی ہوتی تھی، وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتے اور سامنے والا کہتا تھا لگتا تیرا پروگرام نہیں دے گا، یہی ہوتا تھا نا، تو پیسے کتنے مانگ لیے تو دینے نہیں چاہتا۔ تو حضرت بلال حبشی کو کتنے پیسے گئی؟ اس نے کہا جی 30 اوقیہ۔ وہ کہتا میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے، میں نے بڑے پیسے مانگے، تو کہا 30۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے میں تو 100 لے کے گیا، کہتے میں نے 30 نکالے اور دے دیے۔ حضرت بلال کو آزاد کرایا، مجھے بن خلف کہنے لگا ابو بکر تو تاجر بندہ ہے، سیانا بندہ ہے، ایسے تو نہیں تھا نا کہ بندہ باہر سے آیا تو مکے کا باسی اور زمانہ تجھے جانتا ہے، اگر تو 1 اوقیہ سونے پہ اڑ جاتا نا کہ میں صرف 1 اوقیہ میں بلال کو خریدوں گا 1 میں، تو مجھے کہنے لگا میں 1 پر بھی بیچنے میں تیار تھا، میں نے تو 30 اس لیے مانگے تھے کہ تو چلا جائے، اور میں نے 30 مانگے تو نے 30 دے دیا، حالانکہ تو 1 اوقیہ پہ ضد کرتا تو میں دے دیتا۔ ابو بکر صدیق مسکرائے، فرمانے لگے تو ابھی کافر ہے، تجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں، یہ تو ابھی تو آشنا نہیں نا، تجھے کیا پتا ہو یہ بھی ایک مزہ ہے، تجھے پتا نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے، تو ابھی اس سرور سے دور ہے۔ وہ اقبال کہنے لگے نا بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی مہک تماشا ہے جب بام ابھی، اور پھر کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور پھر کہنے لگے عقل عیار ہے۔ عیار کا سادہ ترجمہ مکار ہوتا ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، دیکھیں عقل کو عیار کا، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ پہلے باہر دیکھے کتنی تبلیغ ہے، وہ عیار ہے اور یہ بیچارہ، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ ظاہر نہ حکیم، بیچارہ جو ہوا ہے بیچارہ تو لہذا کچھ بھی نہیں۔ تو میاں کہنے لگا تو 1 پہ اڑ جاتا تو میں 1 کا بھی دے دیتا، تو صدیق ایک پر ہنسے، جناب بلال کے پاس تھاما، کہنے لگا میاں تیرا کیا خیال ہے، میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میاں کہنے لگا نہیں آپ تو صدیق معروف ہیں۔ حضرت صدیق ایک پر کہنے لگے میاں سن پھر تو کہتا ہے نا کہ تو 1 پہ اڑتا، میں 1 پہ اڑتا تو 1 کا بھی بلال دے دیتا، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تم نے 30 مانگے، تو 100 مانگتا تو میں 100 کا بھی بلال خرید لیتا، تم اس لیے کہ یہ حضور کی چاہت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مال وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں انسان کو بڑا پیار۔ آپ نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا زکات مال ہے، آدھا لانا بھی کوئی آسان کام، 2.5% زکات ہوتی ہے، پر جن کو دینی پڑتی ہے نا وہ بیچارے 15 مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ کتنوں کو 2 لاکھ باجی لائے چلے، وہ 15 مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے، بہن بھی حصہ مانگ رہی ہے، فلانا پہ مسئلہ ہے، قرضے بھی ہیں، کچھ کمیٹیاں بڑے چکر چلاتے ہیں، حالانکہ دینے کتنے ہوتے ہیں 2.5%، 50% دیا حضرت عمر فاروق نے، 50% آدھا مال، کہتا میں نے سوئی دھاگا بھی آدھا کر لیا، میں نے کہا کپڑے بھی آدھے کر لیے، میرا خیال تھا ابو بکر سے ٹھیک ہے، ابو بکر سے ٹھیک نہ ہے، ہر شے آدھی کر کے لے گیا، لیکن قربان کہتے میں نے سارا مال رکھا، ادھر سے ابو بکر صدیق بھی آئے، جب وہ آئے تو پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپے کے، لباس پہنا ہوا ہے ٹاٹ کا دل اللہ کو دیں آپ گواچے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، آئے کہنے لگے نبی کریم نے جو سوالات کیے نا تو سوالوں میں بڑا فرق تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے جو سوال قائم کیے نا ہم دونوں میں تو سوالوں میں ہی بڑا فرق تھا۔ مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لے کے آئے، میں نے کہا تھا ذرا میری بات پہ توجہ کرنا، کہتے ہیں مجھ سے سوال یہ ہوا کہ کیا لے کے آئے ہو، اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے، ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے، کہتے ہیں سوال پہ بات ختم ہو گئی، اور میں کیا ہوا تو کتوں جتنا ہے، یہاں تو سوال ہی الگ الگ ہو گیا ہے، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بھلا کیا لے کے آئے ہو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ لے آیا، ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو، کہا ابو بکر بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہتے ہیں وہیں بات ختم ہو گئی، ابو بکر صدیق نے بھی بڑا یاد رکھا، یہ نہیں کہا کہ حضور سارا کچھ لے آئے، انہوں نے بتایا کہ حضور میں اللہ وارث تو نہیں ہوں، یا رسول اللہ میں کوئی کنگال تو نہیں ہوں، حضور میں کوئی چھوٹے موٹے اقبال کا ماننے والا ہوں، یہ نہیں کہا حضور سارا لے۔ عمر کہتے ہیں اگر حضور کے سوال میں فرق تھا نا تو میرے ابو بکر کے جواب میں بھی بڑا فرق تھا، حضور نے پوچھا کیا لائے ہو تو میں نے کہا آدھا لایا ہوں، ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو تو یہ نہیں کہا حضور میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، بلکہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو کنگال ہوں، میں تو لوارث ہوں، حضور گھر میں اللہ بھی چھوڑ رہا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ رہا ہے۔
भरा हुआ घर छोड़ के आया हूँ सोनिया, भरा हुआ घर है मेरा, भरा हुआ बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। और लुटाया राह हक में घर कई बार, एक बार नहीं कई बार लुटाया राह हक में घर कई बार, इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर, लुट लुट कर हसन घर बन गया। अच्छा एक और बात, लोग ना करीब रहते हैं पर रज़ा को नहीं समझते, करीब रहते हैं रज़ा को समझते हैं, ये नहीं समझते कि अब्बा की रज़ा की समझते, मेरे उस्ताद की रज़ा, मेरे शेख लाजी की रज़ा नहीं समझते, कहानियाँ बनाते हैं, मराद ड्रामा स्टोरियाँ बनाते हैं। और नहीं कि नहीं अब्बा जी को भी तो पता है ना मेरे भी बच्चे, जी हाँ जी, लेकिन है तो अब्बा जी ना होते हैं, तो अब्बा जी ना रहेंगे भी अब्बा जी। तो अगर उनको ये पता है कि आपके बच्चे हैं तो आपको भी तो पता है ना मेरे अब्बा जी, तो आप भी तो थोड़ा ख्याल फरमाएं। हम कहानियाँ बनाते हैं पर रज़ा को समझते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबी करीम की ना रज़ा को समझते थे, वो समझ गए थे कि सोना किन कामों में राजी हो। ये इस पहलू को बस समझ लें, जो ये समझ गया ना वो पा गया, वो जीत गया। जो जहाँ आ गया ना ये समझ आ गई, जो मिजाज को जान गया, उसे पता चल गया, वो बस ना बात को समझ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की, हुज़ूर फजर की नमाज पढ़ा के फरमाने लगे भाई किसी बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है, अच्छा तुम्हारा क्या रात को मेरा इरादा था रखो, और सवेरे पे मैंने गिरा दिया नहीं रखा। हुज़ूर ने दूसरी दफा पूछा भाई किसी ने रोज़ा रखा है, तो सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, या रसूलल्लाह मैंने रखा। आप हुक्म ना देते तो मैं बताता, आप रोज़ा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हज़रत उमर कहते हैं हुज़ूर ने तो फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा कि किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है, तो हज़रत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज़ की या रसूलल्लाह अपनी नमाज फजर पढ़ी है, अब घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे। हुज़ूर ने फरमाया उमर को जरा ठहर जाना, जल्दी ना कर, ठहर ना जरा, रोक तो सही। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुज़ूर ने फरमाया बताओ कि किसी ने तीमारदारी की है, तो सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार है, और हुज़ूर मुझे ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोते पर तहज्जुद में जरूर उठता है। तो हुज़ूर मैं भी जरा फजर के वक्त जल्दी उठा हूँ, तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तीमारदारी करके आए। हज़रत उमर कहते हैं मैं ना हल्का ढीला पड़ गया। हुज़ूर ने तीसरा सवाल पूछा, फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया, खाना खिलाया किसी मिस्कीन को। हज़रत से कहना उमर फारूक कहते हैं मैंने फिर अर्ज़ की, मैंने कहा यार सुना तो फजर पड़ी है, घर जाएंगे कुछ चीज लेंगे तो खाना खिलाएंगे, तो हुज़ूर फिर मुस्कुराए, फरमाया उमर तो जरा ठहर के जरा ठहर ना, जरा नज़ारा तो करना, गोया ये शान सिद्दीक़ अकबर का जलसा होगा, ठहर ना। हुज़ूर ने फिर पूछा किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया, तो हज़रत उमर कहते हैं लोग सारे दाएं बाएं देख रहे थे और मैं चुपके चुपके अबू बकर को देख रहा था, कि मुझे पता था कि बोलना इसी नहीं है, और दिल मेरा कर रहा था कि कह देखो जनाब जवाब, दिल मेरा कर रहा था। वो समझ गए थे कि सोना राजी कितना होगा, बस ये नुकता उन्होंने पा लिया। हुज़ूर ने फरमाया बताओ किसी मिस्कीन को रोटी खिलाई है, तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया। या रसूलल्लाह सवेरे उठा हूँ तो छोटा बेटा उठ गया, और मेरे वुज़ू करते सुन्नत पढ़ते माँ से कहने लगा भूख लग रही है, तो माँ ने 2 रोटियाँ भी पका दी, तो हुज़ूर एक उसने खाई, दूसरी उसके हाथ में थी। जब हम निकले ना घर से तो दरवाजे पे एक फकीर खड़ा था, मिस्कीन खड़ा था, कह रहा था रात से भूखा, वही दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा था, अबू बकर सबसे पहले तेरा ही खुला है। तो हुज़ूर मैं ना उस मिस्कीन को एक रोटी खिला के आया हूँ। हज़रत उमर फारूक कहते मैंने गर्दन झुका ली, और मेरे रसूल करीम ने फरमाया अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम कर, अल्लाह मेरे अबू बकर। वो समझ गए थे, मिजाज शनासा समझ आ गई थी कि हुज़ूर की बातों में, और ना अपने ऊपर सारा कुछ तारी कर लिया था उन्होंने, तारी उनकी अदाएं बिल्कुल ढल गई थी नबी पाक की अदाएं। 3 दिन वो गारे सौर में रहे, तो हमारे सूफिया फरमाते हैं कि उन पर तजल्लियां भी बड़ी माहूम की बात है। जब मदीने आए ना नबी करीम को लेके, तो कुछ लोगों ने हुज़ूर की ज़ियारत की थी, कुछ ने नहीं की थी, तो कुछ आते तो नबी पाक की दस्तबोसी करके बैठ जाते, अबू बकर से हाथ ना मिलाते, कुछ सिर्फ हज़रत अबू बकर से हाथ मिलाते और हुज़ूर से हाथ ही ना मिलाते। मेरी बात में तवज्जो है आप हज़रात की। तो कुछ लोगों को ना शुबा होने लगा, तो माज़अल्लाह समझने लगे कि शायद यही अल्लाह के रसूल। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये क्यों शुबा हुआ, तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ बोलते भी उस तरह थे जो मेरे नबी पाक का तरीका, बैठते भी उस तरह थे जो रसूल पाक का तरीका। कहते हैं उन्होंने इमामा बांधा हुआ था, तो जो इमामे का पेज हुज़ूर का ढीला रह गया था उनका भी ढीला रह गया। इस तरह अपने आप को मिजाज में ढाला था, तो मनशुदी मनतूशुदा, इस तरह ढाला था मिजाज में, इस तरह के कोई फर्क नहीं नजर आता था। वो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा ना कि लोगों को तो शक हो रहा है, कोई मेरे साथ हाथ मिला के बैठ जाते हैं, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए कि पता चले आता कौन है गुलाम कौन। उठे, कंधों पे चादर थी, वो उतार के ना तो हुज़ूर पे साया कर, लोगों को पता चल गया कि साया करने वाला कोई गुलाम है, और जिस पर साया किया जा रहा है वो आका है। क्या खूबसूरत नुक्ता लिखा है मुफस्सिरीन ने, शारिहीन फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर के सर अनवर पर अपनी चादर का साया दिया था। अल्लाह के रसूल ने एहसान का बदला ये दिया, नेकी का बदला ये दिया कि क़यामत तक उनकी कब्र पर अपने गुंबद का साया करवा दिया, क़यामत तक गुंबद का साया कर दिया उनके मज़ार पर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने। और एक और बात, जो लोग बहुत ज़्यादा करीब रहने लगते हैं ना, वो तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लग जाते हैं, ज़्यादा करीब रहते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत का मामला तवज्जो है मेरी बात। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ना बड़े करीब रहते थे, और उनका करीब रहना ना नबी पाक पसंद भी करते थे। चलिए एक बात और याद आ रही है, पहले वो ना कर
रैंक भी है। कुछ बंदे नहीं ना हम करते थे ना कर वो कहने जो बोलते हैं मेरी सलाह कर। और भाई एक बात याद आ रही है, वो भी अर्ज कर देते मैं, लेकिन आप लोग मुस्कुराए हैं तो मुझे अजर मिला है। आप मेरी बात पे तवज्जो करें। एक दिन ना सरकार ने बैठे बैठे शाहबुद्दीन साहब की शाबाश के काम लिखा, उसने बैठे बैठे सहाबा से पता कुछ लोग बैठे रहते थे, कुछ लोग जबरदस्ती बोझ भी बनते हैं ना 12 लोगों की तरीके तो कहना पड़ता है उनसे कि चलो मेहरबानी करें कोई और काम करें। और कुछ ऐसे होते हैं कि मिस्र तावीज़ होते हैं, कुछ वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। एक दिन सरकार ने फरमाया, अगर मैं माली जाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि सारा दिन ना बैठे रहा करो, वक्फे से मिला करो, वक्फे से मोहब्बत बढ़ती है, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी करीब बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। ज़ोहर से पहले बात हुई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ज़ोहर में आए नमाज़ पढ़ी और चले गए, असर में आए नमाज़ पढ़ी और चले गए, मगरिब में आए नमाज़ पढ़ी और हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं ज़ोहर के बाद भी हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए? देख भी दिया है, आए भी हैं, लेकिन फरमाया मैं तो नमाज़ में आया, इधर नहीं आया। असर के बाद फिर पूछा अबू बकर नहीं आए? आप जरा कभी इस लज्जत को महसूस करें, जरा देखें तो सही क्या हुआ। तीसरी दफा मगरिब के बाद पूछा अनस यार अबू बकर नहीं आया? हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं खादी तक करीब रहता तो मैं दौड़ा के अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने कहा क्या करते? हुजूर ने 3 दफा पूछ लिया, आया नहीं। कहते सिद्दीक़ अकबर दौड़े, हाजिर खिदमत हुजूर होगा ना यार, तू सारा दिन मेरे पास बैठा ही नहीं, तू आया ही नहीं, तू नजर ही नहीं आया। अर्ज की हुजूर आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो सुनो यार, मैं क्या इसका तर्जुमा करूँ इस बात, मैं इन लफ्ज़ों में जुमलों को बयान करूँ, कहाँ से लाऊँ वो कैफियत तो यहाँ कोई उतरे। हुजूर आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है, तो महबूब की आंखों में आंसू चमक आए। फरमाया अबू बकर कहा था पर तुझे तो नहीं कहा, यार कहा था कुछ लोगों से, तुझे थोड़ी कहा था, तू ना गया कर, तू यही रहा कर, तू रहा कर यार, तू रहता है तो मेरा दिल लगा रहता। और यार आप समझे तो सही, आप जरा महसूस तो करें एक बारी मेरी आंखियां जो उन्होंने अथरू कौन जैसा हुण मैनू चस्का पै गया रोने का, हुण मैनू चस्का पै गया रोने का, ते हर वेले आ गुजारी दा आप जरा इस लज्जत को तो ले। हुजूर ने फरमाया तू ना गया। आप देखें ना, मैं आपके पास नहीं हूँ, सिर्फ इशारा देना है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा था कि ले जाना और मेरी बड़ी मकाम है, हुजूर तुम्हें पता है मेरे बारे में क्या कहा करते थे, मुझे गुंबद में दफन करना, ये नहीं कहा। और मैं ले जाना दरवाजे पे रख देना, अगर दरवाजा खोल, उन्होंने कहा दरवाजा खोलने की बात की थी, तफसीरें कभी सारी पढ़ लेना, अगर दरवाजा खोल जाए तो दफन करना, वरना जन्नत बकीर में फरमाया मैं इस पे भी राजी हूँ, जन्नत बकीर में दफन कर देना। लेकिन मौला अली कहते हैं हमने तो सिर्फ रखा था और हमने उसकी हुजूर अबू बकर हाज़िर है, उन्होंने कहा था अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो रख देना। कहते हैं उन्होंने तो सिर्फ दरवाजे की बात की थी, लेकिन गुंबद का सिर्फ दरवाजा नहीं खुला, अंदर से आवाज भी आई, अंदर से आवाज भी आई, नया वो सजना ऐसा तोड़ भी पाई, नया सजना ऐसा तोड़ भी भाई। और दरवेश कहने लगे पानी भर में सुहेलियां रंग का रंग खड़े, असी ते भरे उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। आवाज आई, देर ना करो हबीब को हबीब के साथ मिला दो, लाओ करीब करो, जितना करीब रही गुर्बत बढ़ी, प्यार बढ़ा, बात समेटने लगाओ, अदब भी बढ़ा। अब पता किस तरह अदब करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए एक काफिर कबीले के सुलह कराने, फरमाया देर से आया तो असर बढ़ा लेना। सहाबा को पता था कि जब हुजूर नहीं होंगे तो जमात कौन कराएगा। हज़रत बिलाल ने कहा बड़ी सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा देगा, हुजूर तशरीफ ले आए, लोगों ने हाथ पे हाथ मार के हज़रत सिद्दीक़ अकबर बताया कि आ गए हुजूर, अल्लाह के मामून के लिए रास्ता बन गया, नमाज के बीच में रास्ता बन गया। सफ़े तोड़ रहे हैं सहाबा, हुजूर को रास्ता दे रहे, सफ़े टूटती रही पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी, सफ़े टूटती रही नमाज नहीं टूटी। हुजूर पहले सफ़ में पहुंच गए तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने एक कदम पीछे हटा। हमने सुना सारी जिंदगी यही है कि हुक्म आ जाए तो वादा पर फौकियत रखता है, एक कदम हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पीछे हटाया तो हुजूर ने कहा अबू बकर नमाज पढ़ाओ, उन्होंने एक और पीछे हटाया, अबू बकर नमाज पढ़ाओ। तीसरी दफा ना हुजूर ने फिर हुक्म दिया तो वो पिछली सफ में आ गए, वो दूर बैठे थे खाता गुलाम करी, वो कोट में ठगने कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तैमल देखा, नमाज पढ़ा के मैं तैमल देखा, मैं मुकाबा भूल गया ही, भूल गई नहीं सब सौम सलाता इको यार दा फिक्र पे आ, नमाज पढ़ा के मैं तैमल देखा। और एक बार कहने लगे अज़ान तो वज़न से तेरे इश्क का तराना बनो, और ये नमाज तो उसके नज़ारे का एक बहाना, नमाज पढ़ा के मैं तैमल देखा, मुकाबा भूल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली साफ में खड़े हुए, मुसल्ले में जमात कराई, नमाज के बाद हुजूर ने ना मुस्कुरा के पूछा अबू बकर मैंने 3 दफा कहा क्यों नहीं नमाज पढ़ाई, फिर भी लफ्ज़ कोई नहीं, जुमला कोई नहीं, अत्ताहियात की हालत में बैठे थे तो हाथ बांध दिया, क्या जुमले कहे क्या शान है। कहने लगे हुजूर अब अबू कहफा के बेटे की इतनी जरूरत भी नहीं कि मदीने वाले रसूल को जमात कराए, इतना अदब पर कौन कहा। नबी करीम से प्यार किया तो फिर हुजूर की औलाद से भी प्यार किया। शाह रजीद मुहद्दिस भी कहते हैं हमारे फारूक खुतबा दे रहे थे तो इमाम हसन, मेरी बात मुकम्मल हो गई, बस एक दो बातें याद आ गई, मैंने कहा चलो शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देवी यहाँ यूं तर्जुमा करने में कभी कभी तकरीर करने वाले को भी मजा ज़्यादा आने लग गया। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर जुमा पढ़ा रहे थे तो इमाम हसन आ गए मौला अली के साथ, तो बच्चों को बड़ा पता होता है कि ये चीज़ मेरे अब्बा की है, ये मेरी अम्मा की है, बच्चे बड़ा ध्यान रखते हैं। तो इमाम हसन आ गए हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कहने लगे नीचे उतरना, मेंबर तो मेरे नाना है, मुझे सही बताना कि जुमे छोड़ के बच्चों से भी बातें होती हैं, 7-8 साल के बच्चे थे इमाम हसन, पर मामूली बच्चे नहीं थे, हुजूर के नमाज से नीचे उतरे, मेरे नाना का मिंबर है। तो हज़रत मौला अली ने पकड़ा इमाम हसन, उतरे बैठ नमाज पढ़, तो
तो सिद्दीक एक बार कहने लगे, अली आप हट जाए ना, मेरा और हसन का मसला है। करने का ना बात, तो इमाम हसन फिर कहने लगे, उतरो ना नीचे मिंबर पर ना लगा। तो अबू बकर सिद्दीक उतर के खड़े हो, हाँ हाँ उतर के खड़े हो, जमीन पे खड़े हो। कहने लगे मेरे नाना का मिंबर है। तो अबू बकर रो पड़े। कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाने का, तो अबू बकर भी तो तेरे नाने का ही है। ये किसका है? इसने भी तो नौकरी भी किया। तो इमाम हसन कहने लगे, अच्छा चलो ठीक है, बैठे फिर पढ़ाए तुम। फिर बैठ गए। हर शहर से प्यार, और फिर हुजूर की उम्मत से भी प्यार। तो तुम कहते हैं जब अबू बकर सिद्दीक विसाल कर गए तो तीसरा दिन था उनका इंतकाल। असर की नमाज पढ़ा के तो मैं मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था, तो दो तीन छोटी छोटी बच्चियां आ गई। कहने लगी आप खलीफा बने? मैंने कहा तो मैं बना। कहने लगी चलो फिर ये लाइन अगर हमें देते। मैंने कहा कि तुम्हें देते थे क्या माना? तो वो कहने लगी हम 5-6 बहने हैं, हमारा भाई हुई, वालिद हमारा इंतकाल कर गए, हमारे घर में चंद बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद अमीरुल मोमिनीन, और हमारी बकरियों का दूध देते थे, कुछ हम पी लेती थी, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी। और फिर वो बेटियां रो पड़ी। कहने लगी चाचा 3 दिन हो गए उनके इंतकाल को, मेरी माँ रोती है, मेरी बहनें रोती, वो दरवाज़ा देखती है कौन आएगा बकरियों का दूध। आज किसी ने बताया आप खलीफा बने, चाचा चलोगे? तो हज़रत उमर रो पड़े। कहने लगे पुत्र चलो। आगे आगे बच्चे तो पीछे पीछे फारूक आज़म रोते जा रहे। किसी ने कहा कहाँ जा रहे? फिर रो पड़े। कहने लगे यार अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए रास्ता कितना मुश्किल कर दिया, कैसे चलूँगा इनके रस्तों पर? यार बड़ा प्यार किया उन्होंने। मैं कहा करता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक ने ना अपनी सोचों को भी बांध लिया था, हाथ भी, पैर भी, जुबान भी, हर शय बांध के ना तो मुस्तफ़ा करीम के कदमों में गिरा दिया था। कब हुजूर मैंने बांध दिया है, इधर आप चलाएंगे ना उधर ही चलेंगे। अकल कुर्बान कुल वैश मुस्तफ़ा। इकबाल कहते हैं अपनी अकल हुजूर के कदमों में पेश कर दे, तो बच जाए। अपने आप को पेश करें, ज़्यादा पैसे ना करें, ज़्यादा उठाओ ना पैदा करें।